Good morning, all the students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. We have, in the previous module, we have started this chapter, and the name of this chapter is Election and Representative. So, we generally discuss about the basic things of the elections. Today, in this module, we will discuss about the topic that is election system in India, and we will also discuss about the other types of the election system that is not being existed in India, but they are being used in other countries too. So the first thing is that why the different or a specific type of the election system is being adopted in India. So firstly we will discuss about what exactly the election system are there. You have noticed above reference to different methods of the system of elections. You have wondered what these were all about. Okay? You may have seen the reads about the methods of the electioneering and campaigns in the elections. But what are the different methods of elections? This is the system of conducting. We will start the definition from here. There is a system of conducting the election in the whole country कि how this election is being conducted. देखिए कुछ कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवीज़न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो in कुछ few of the specific country the different kind of the constituent division is being adopted. So according to that we will consider about that कि what are the election system or not. ठीक है. There are authorities and the rules about do do's और don'ts. ठीक है. इज़ दैट वॉट इलेक्शन सिस्टम्स इज़ ऑल अबाउट. ठीक है. यानी इलेक्शन सिस्टम क्या है, वो एक पूरा सिस्टम है अंडर दैट हाउ द इलेक्शन इज़ बीइंग कंसीडर्ड. ये सारी चीज़ें कन्फाइन की जाएंगी और इसके अलावा कौन अथॉरिटी है, कौन से रूल्स होने चाहिए, कौन से रूल्स नहीं होने चाहिए, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो इलेक्शन सिस्टम है. यू मे हैव वंडर व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू राइट्स डाउन how the voters about to counted and representative elected. Each and everything is being mentioned in the constitution. ये हमने आपको बता दिया था पहले. तो आपको ये सोच के थोड़ा सा सरप्राइजिंग फील हो रहा होगा कि भाई काउंटिंग कैसे होगी, रिप्रेजेंटेटिव कैसे होंगे. वाई दिस थिंग हैज़ बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. यू मे हैव वंडर वाई द कॉन्स्टिट्यूशन नीड राइट. ओके, ठीक है, यहाँ तक हो गया. And are representative elected. Is it that are very obvious? People go and vote. The candidate who gets highest vote get elected. This is general system which is being adopted in India. The person who get the highest vote gets elected and become the representative of that specific constituency. ठीक है. That is what the election are all about in the world. Why do we need to think about it? We need to, because the question is not simple as it appears to us. We have got so used of our system election that we think that there cannot be anyone others. In democratic election, देखिए यहाँ से start होगा. In democratic election, the people votes and their preference decides who will win the contest. What their can be a very different way in the which the people makes their choices. देखिए generally in India there is a system that is being as a democratic election system, or under that particular person the person will cast their vote and the person wish will be hidden inside of the vote only. You will define your wish by just casting your vote. Whosoever got the maximum votes will become the representative on behalf of you all. ठीक है. These different rules of the games can be make a difference that who is the winner of the game will be. ठीक है. Some rules are favor bigger parties and some rules can help the smaller party. Some rules can favors the majority community and others can protect the minorities. Let's look at one of the domestic changes over there. तो जो पहले देखिए दो बेसिकली ऑथराइज्ड सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो ये है. पहला है FPPS, फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम. सी एक आर्टिकल जो दिया है, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत. देखिए देखिए इट टेल्स दैट वन हिस्टोरिकल मूवमेंट्स इन इंडियाज डेमोक्रेसी. इन लोकसभा इलेक्शन इन 1984 द कांग्रेस पार्टी केम
to the power, winning 415 of 45 Lok Sabha seats, more than 80% of the seats. Such a victory was never achieved by any party in Lok Sabha. What did this election shows? The Congress party won 415 ऑफ सीट्स. पहली चीज़ तो ये है, ठीक है, यानी कि ये जो सर्वे दी है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इलेक्शन रिजल्ट ऑफ 1984 एंड अंडर दिस सर्वे इट हैज़ बीन शोन दैट द कांग्रेस पार्टी हैज़ वॉन द सीट्स दैट आर इन नंबर ऑफ. कितनी सीट्स वॉन की हैं कांग्रेस पार्टी ने? 415 seats has been won by the Congress party. So this all thing has been shown over there. See, तो इसमें ये कहा गया लगभग 80% सीट्स जो हैं, क्योंकि टोटल लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं? 543. तो 543 में से आउट ऑफ 543 415 आर बीइंग वॉन बाय द कांग्रेस पार्टी. ठीक है, इट मीन्स दैट 4 आउट ऑफ 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर द कांग्रेस पार्टी. 80% का लमसम यही मतलब होगा कि अगर मान लो 5 वोटर है तो उसमें से 4 वोटर ने कांग्रेस को वोट दिया, तभी तो उसको इतनी सारी सीट्स मिल गई हैं. ठीक है, एक्चुअली नॉट. इसका ये मतलब हो सकता है ना कि भाई 415. देखिए, टेक अ लुक ऑन द क्लोजर टेबल्स. द कांग्रेस पार्टी गॉट 48 ऑफ द वोट्स. इट मीन्स दैट 48% ऑफ those who voted in the favor of the candidates put up by the Congress party, but the party still managed to win more than 80% of the seats in the Lok Sabha. Look at the preference of the others in the BJP. देखिए 48 ये कहा गया कांग्रेस पार्टी ने विन किया है. तो अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो विनर्स हैं वो 458 सीट्स हैं, और जिसने परसेंटेज विनर्स हैं वो 48% वोटर्स की सीट से भी वो 415 सीट्स को विन किया. देखिए, लुक एट द प्रेफरेंस ऑन द अदर्स. बीजेपी गॉट 7.4% ऑफ द वोट बट लेस देन 1% ऑफ सीट. How did that happen? So देखो, this happened because our country we follow a special methods of election. Under this election the entire country is divided into the 545 constituency. देखिए हमारी क्या है, जैसे ओवरऑल कंट्री है तो ओवरऑल कंट्रीज़ को डिस्ट्रिक्ट के बेसिस में डिवाइड किया जाता है. कंट्री पहले स्टेट्स में डिवाइड है, फिर वो मेट्रोपॉलिटन में डिवाइड है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट, और ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट से या डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा सा एरिया बढ़ा के एक एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, और उस एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक विनर बनता है. ऐसे करके पूरी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया है. ईच कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. हर जगह से एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है. ठीक है, एंड द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड. ये हमारा जो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम हमारे इंडिया में अडॉप्टेड होता है कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को स्मॉल फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाता है. पूरी कंट्री को स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी डेट इज़ कॉल्ड फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाता है, और उस एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर विन होकर आता है, और वहाँ के सारे मेंबर्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी विल कास्ट देयर वोट. अब ये डिपेंड करता है जो मैक्सिमम वोट विनर होता है. अब यहाँ पे 48% की बात हो रही थी, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर विनर जो है वो बहुत ज़्यादा वोटों से जीता है, तो कोई बहुत कम वोटों से जीता है. तो होलसम एवरेज इतने वोटर्स जो हैं वो लगभग विन हुए. ठीक है, मोर वोट्स देन ऑल द अदर कैंडिडेट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. यानी जो भी ऐसा सिस्टम है जिसमें ज़्यादा वोट किसको मिलेंगे, जिस भी कैंडिडेट को. जैसे मान के चलो एक पीलीभीत की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी. अब पीलीभीत की कॉन्स्टिट्यूंसी से जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर हो जाएगा. अभी करंटली सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वरुण गांधी को, तो वो विनर होगा. ठीक है, द विनिंग कैंडिडेट्स नीड नॉट टू सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ द वोट्स. देखिए आगे समझ में. अब ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे कह दिया मोर वोट्स देन ऑल अदर कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. अब ज़रूरी नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा वोट मिले. अब एक किसी को मान लो सपोज 51 वोट्स मिले एग्जाम्पल के लिए, और किसी को 48 वोट मिले, तो दोनों के बीच के वोट में डिफरेंस कितना है, 3 वोट्स का. लेकिन डिक्लेयर्ड कौन किया जाएगा विनर, जिसको 51 वोट्स मिले हैं.
ठीक है, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिल गए वो विनर है। ज़रूरी नहीं है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, मतलब थोड़े भी ज़्यादा मिल सकते हैं तब भी वो विनर बन सकता है। ठीक है, द विनर कैंडिडेट नीड नॉट टू सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट एंड पोस्ट सिस्टम। In a electoral races, the candidate who is ahead of the others who cross the winning post first of all is winner. This method is also called as a plurality system। ठीक है, यानी एक और भी इसका नेम होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि दिस स्पेसिफिक सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ प्ल्यूरिटी सिस्टम। ठीक है, इसको प्ल्यूरिटी सिस्टम भी बोलते हैं, यानी जो ज़्यादा हो जाता है नंबर में वो जीतता चला जाता है। अब जिसके भी वोट ज़्यादा है वो जीतता जा रहा है। दिस मेथड इज इलेक्टेड प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेथड जो है वो प्रिस्क्राइब किया गया। लेट अस नाउ गो बैक टू आवर एग्जांपल। द कांग्रेस पार्टी वॉन द ग्रेटर शेयर्स of the seats than its shares of the votes, because in many of the constituency in which its candidate won they secured less than 50% of the voter। देखिए, अब डिपेंड क्या करता है कि वोटर कितने भी हैं। मान लो यहाँ पर 1 लाख लोग हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 1 लाख के 1 लाख लोग वोट कास्ट करेंगे। जितनी वोटिंग हुई है उस वोटिंग के केसेस में जो मैक्सिमम वोट विन करने वाला है, चाहे वो एक वोट भी ज़्यादा क्यों ना विन करे, हु बिकम द पर्टिकुलर पर्सन। तो जो हमारे इंडिया में जनरल अडॉप्टेड सिस्टम है दैट इज फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम है। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। 50 less than 50% vote, if there is several candidates the winning candidate often gets much less than 50% of the vote। अब यहाँ पे कंडीशन क्या, अगर मान लो 10 लोग हैं और सब में वोट बटे हैं, तो अगर 100 लोगों ने वोट डाले हैं और एक को मिला है 50 वोट, ठीक है, दूसरे को मिले 20 वोट, किसी को मिला 10 वोट, किसी को 20, किसी को 15, ऐसे करके 100 के 100 वोट बट गए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को 80% वोट मिले तभी वो जीतेगा। सारे लोगों में जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे तब वो जीतेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे ने उसको वोट दिया। ठीक है, जैसे मान लो अगर 100 वोट हैं और 10 कैंडिडेट हैं तो उनमें से कुछ और कैंडिडेट, सब हर एक कैंडिडेट में वो वोट बढ़ जाते हैं जब कास्टिंग होती है, तो उन सब में जिसके पास मैक्सिमम वोट पहुंचेंगे दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बिकम द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, द वोटर दैट गोट ऑल द losing candidates go west। for these candidates or the party get no seats and those votes, suppose a party get 25% of the votes every constituency but everyone else get even less votes in case the party could win all the seats with all 25% of the votes even less। ठीक है, तो this is all about the FTFY। in the next video we will discuss about our next topic, that is proportional representative। ठीक है, thank you very